Assalamu alaikum. This is your second lecture of chemical process technology, and in the last lecture we were discussing about fertilizers. If we recall, what we did in our first lecture was we discussed what is a fertilizer, then what is a micronutrient, what's a secondary nutrient. After that, the classifications. Then we discussed single nutrients, binary nutrients, mixed nutrients. What are those? Then we started manufacturing process. We discussed our first fertilizer, that was superphosphate. We discussed the reaction, the process flow diagram. Then the second material that we discussed of fertilizer was triple superphosphate, and we discussed how it is made. So today we will be continuing this topic, and the next fertilizer that we are going to discuss today is one of the most important fertilizers in the industry, and that is urea, CH4 and 2O. So it is a high concentration nitrogenous fertilizer. So a fertilizer which has a nitrogen concentration in con- content about 46%. So 46% of the urea is made up of nitrogen. The chemical name of urea is carbamide, and the raw material that are used are carbon dioxide and ammonia, which is primarily used for making urea. The reaction. The reaction is, first nitrogen reacts with carbon dioxide to make carbamate. It's a intermediate product. The first reaction is an exothermic reaction, and then that carbamate disintegrates into urea and water, and this process of disintegration is an endothermic process. Operating conditions: the temperature required for the reaction is 170 to 190 degrees centigrade, while the pressure for the production of urea is about 135 to 145 bar. Now this is a very important diagram, the process flow of production of urea. So what we have, first of all, is a reactor. We have a distillation tower, we have a flush drum, we have a vacuum evaporator, and we have a prilling tower. So what happens is, initially we have got two compressors. हमारे पास दो compressor होते हैं. One is holding our liquid ammonia, and one is holding our carbon dioxide. Now they both are fed to our urea synthetic tower, our reaction tower, and through a ratio of 3 to 5 moles of NH3 to 1 mole of our carbon dioxide, as represented by the reaction. Now in the reactor, say it is first of all, carbon dioxide is introduced from the bottom, and NH3 is basically fed to high pressure condenser from these valves, whatever that, these valves from the reactor. Now the reaction is taking place, since it's isothermic and endothermic. Both reactions are occurring, but primarily the the it has both an exothermic and endothermic step, but since I'm talking about the temperature here is very high, so the exothermic part dominates. So we have water around the tower, the synthetic tower, to provide some form of cooling while the reaction is taking place.
Now from this tower we get यूरिया. अच्छा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, हमारे पास यूरिया बन जाती है इस टावर से. वी हैव वाटर, वी हैव unreacted NH3 and CO2. ठीक है. Or and some amount of carbamate also which has not been reacted. जो हमारा कार्बामेट कुछ जो कि इंटरमीडिएट स्टेप में हमारे पास रह गया है, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. तो यूरिया हमारे पास यहीं प्रोड्यूस हो जाता है. यहाँ पे हमारे पास इन दिस टावर द यूरिया दैट इज प्रोड्यूसेस ऑफ अराउंड 34-35%. सो वी हैव अ 30 to 34-35% यूरिया इन आवर स्ट्रीम, और जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट होता है वो हमारे पास यही सब अनरिएक्टेड मटेरियल और जो पार्शियली रिएक्टेड कार्बोनेट वगैरह होते हैं. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट. यहाँ से हमारे पास हमारा एम होता है कि उस 30-40% यूरिया को, 30-35% यूरिया को कन्वर्ट करें 100% यूरिया में. सो अब हमारे पास यूरिया की कहीं और प्रोडक्शन नहीं होगी, सिर्फ उसकी प्यूरिफिकेशन होती है. सो व्हाट हैपेंस इज we have a distillation tower. So the our stream goes into distillation tower. It is fed from the top, and we have steam that enters from the bottom of the tower. So what steam does is it removes NH3CO2 H2O and some amount of carbonate that was produced, uh, that was that entered with our urea, and it strips it off from the top of the distillation tower. So ये top से वो इसको remove कर देते हैं, and the bottom product that we get is again we have some form of purified ammonia, sorry urea, and again some content that is left. So it heads to a flash drum. ठीक है, यहाँ पे हम flashing करते हैं, and it further removes our unreacted ammonia, carbon dioxide, and water from our stream of urea. From there, we get 80% aqueous urea, यानी कि water 80% watery urea की हमारी production हो जाती है, and another stream is sent to our vacuum evaporator. So अब ये क्या करता है, basically evaporate करता है. ठीक है, high temperature पे evaporation करता है, जो भी हमारे पास aqueous उसको drying करता है एक तरीके से यूरिया को, जो कि एक मोल्टन फॉर्म में होगी हमारे पास. एंड देन वी हैव अ मोल्टिंग टैंक, और फिर उसमें हमारे पास मोल्टिंग टैंक में हमारे पास 99% यूरिया आ जाती है. सो वी हैव कन्वर्टेड यूरिया दैट वाज 30 to 35% इनटू अ 99% इन अ मोल्टिंग फॉर्म. ये हमारे पास एक स्लरी टाइप की उसमें आ जाती है. देन वी हैव अ ट्रिकलिंग टावर, जहाँ से हम नीचे से हॉट एयर प्रोड्यूस करते हैं, और ऊपर से हमारे पास जो है वी इंट्रोड्यूस आवर मोल्टन यूरिया. यूरिया की हम ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं यूरिया को. ठीक है, शावरिंग करते हैं. सो व्हाट हॉट एयर डज इज इट बेसिकली ड्राई कर देती है यूरिया की जो हमारे पास बिट्स आ रही होती हैं, जो कि मोल्टन फॉर्म में थी, अब इन्हें शावर किया गया है, और उसको स्मॉल ग्रेनुलर शेप दे देती है. जैसे अभी हमने ग्रेनुलर शेप देखी है बाकी फॉस्फेट्स वगैरह की, ऐसी ही स्मॉल बिट्स टाइप की शेप दे देती है, और उन्हें ड्राई करके एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है यूरिया हमारे पास. एंड देन वी हैव अ कन्वेयर जहाँ पे हमारे पास यूरिया is collected and is processed further for packaging and delivering. So this is a manufacturing process of our of यूरिया. यूरिया की यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्टिलाइजर्स में होता है हमारे पास यूरिया यूज. इसके अलावा प्लास्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट रेजिन्स वगैरह में यूज होता है. इसके अलावा केमिकल एडहेसिव्स में यूज होता है. एनिमल्स की फीड में आप यूरिया को यूज करते हैं, सिंथेटिक फीड बना दी जाती है. उसके अलावा सरफेस क्लीनर्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें हम इनको यूज करते हैं. पेस्टिसाइड्स में यूरिया यूज होता है. ओके, यूरिया के बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है दैट इज डायमोनियम फॉस्फेट, which is NH4 to HPO4. डायमोनियम फॉस्फेट में
14% नाइट्रोजन होती है और 46% P2O5 यानी फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट। इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर, इट इज रिच इन फास्फोरस नाइट्रोजन। हमारे पास फास्फोरस है, इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए इसको फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं। इट इज़ यूज एज अ फायर रिटार्डेंट, फायर रिटार्डेंट के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन मेटल फिनिशिंग ऑपरेशंस में भी यूज करते हैं। एंड इट इज़ यूज इन फर्मेंटेशन टू सस्टेन यील्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में ये यूज होता है। This is a process diagram of diammonium phosphate H3PO4. So we have a two-stage reactor जहाँ पे हमारे पास H3PO4 जो कि एंटर होता है और यहाँ से हमारे पास अमोनिया आती है। तो इसके जो प्राइमरी कंटेंट, जो रॉ मटेरियल है वो अमोनिया और H3PO4 होते हैं। यहाँ से हमारे पास एक ग्रैनुलेटर होता है जिसमें रोटरी ड्रम ड्रॉपर्स होते हैं। एंड व्हाट दे डू इज बेसिकली, यहाँ जो हमारे पास रिएक्टर से स्लरी आती है उसको ग्रेन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव स्क्रीनिंग। स्क्रीन होते हैं पार्टिकल, जो पार्टिकल्स ओवर साइज होते हैं उनकी फर्दर क्रशिंग होती है और फिर हमारे ग्रेनुलेटर में आते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और उसके बाद ग्रेनुलेटर स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास कोटिंग होती है। कोल्ड कोट होता है, ठीक है, कोटिंग होती है और उसके बाद हमारे पास उसकी स्टोरेज हो जाती है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है डायमोनियम फॉस्फेट का। अमोनियम नाइट्रेट जो अगला फर्टिलाइजर है, इसका रिएक्शन, अमोनियम नाइट्रेट का रिएक्शन क्या होता है? HNO3 हमारे पास होता है एंड इट इज रिएक्टिंग विद NH3 एंड इट इज मेकिंग NH4NO3। दिस इज आवर रिएक्शन। So ammonia is used in its anhydrous form, a gas, and then nitric acid is concentrated. So ammonia जो है वो हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म में यूज होती है और नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज होती है। द रिएक्शन इज वायलेंट owing to its highly endothermic nature। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। अमोनियम नाइट्रेट, ये इसकी, दिस इज अ टिपिकल प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। सो हमारे पास क्या होता है? वी हैव अ रिएक्टर, यहाँ से हमारे पास HNO3 एंटर होता है, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे NH3 होगा। ये एक वैसे ही हमारी हिस्ट्री में NH3 की है। रिएक्टर में एंटर होते हैं, रिएक्शन होता है, उसके बाद वही हमारे पास कूलिंग चेम्बर होता है। जिस तरह से पिलिंग टावर होता है उसी तरह से स्प्रिंकल करते हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम उन्हें कूल करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके। यूजेस, अमोनियम नाइट्रेट के क्या क्या यूजेस होते हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, ये एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगेन ये एक एक्सप्लोजिव में यूज़ हो रहा होता है तो हम इसमें माइनिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ कर लेते हैं एज एन एक्सप्लोसिव। So these are the uses of ammonium nitrate. So that is it for this lecture. Now we have completed the topic of fertilizers, and now we will move to our next industry, and that is soaps and detergent in the next lecture. I hope you understood till here all these diagrams,
how every material is used, what is the reaction, and what is the process flow diagram of every fertilizer or every product that we have discussed till now. Thank you.